اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ سنشائن ہربل مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ اثردار دوا، اس کے علاوہ وزن بڑھانے اور موٹاپا کم کرنے کے لیے لاجواب دوائیں انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنٹی پلس۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں گزارش کروں گا، اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں، تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے بے باک چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بول رہے ہیں وہ باقی رہے، مضبوط ہو، آگے بڑھیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون ضرور کریں۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر دیا جاتا ہے۔ تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کریں۔ آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے کرناٹک سے۔ جی ہاں، کرناٹک میں نیچ ناٹک بند نہیں ہو رہا ہے، گھٹیا حرکت بند نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حجاب پر پابندی کی معاملہ، پابندی کی بات کرناٹک سے ہی چلی، اور اب بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے کہ بورڈ ایگزام میں بھی حجاب پر پابندی لگا دی گئی۔ کرناٹک کی پرائیویٹ اسکولوں پر بھی قانون لاگو ہوگا۔ کرناٹک سرکار نے اسٹیٹ کے پرائیویٹ اسکولز میں امتحانات کے ایگزام کے دوران بھی حجاب پر روک لگا دی ہے۔ حجاب کو لے کر جاری وواد کے درمیان، جاری تنازع کے درمیان سرکار نے حکم جاری کیا ہے کہ پیر سے شروع ہونے والے 10ویں کے بورڈ امتحانات دینے کے لیے آنے والے طلبہ کو یونیفارم پہن کر آنا ضروری ہے۔ اس سرکولر میں کہا گیا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں اسٹوڈنٹس کو وہی یونیفارم پہننا ہوگا جو اسٹیٹ گورنمنٹ نے طے کیا ہے، یعنی بورڈ ایگزام میں بھی حجاب پر پابندی لگا دی گئی۔ ناظرین، دوسری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ اتر پردیش سے ہمارے رپورٹر فیضان الہی نے بتایا کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں مسلمانوں کے اہم مسائل پر آج آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ سر جوڑ کر بیٹھا۔ گزشتہ کل جس کی ضرورت محسوس کی جا رہی تھی، مجلس عاملہ کی صدارت بورڈ کے ادھیکش صدر حضرت مولانا رابع حسنی ندوی نے فرمائی۔ بورڈ کی مجلس عاملہ کی اس اہم میٹنگ میں حجاب تنازع پر سپریم کورٹ میں مضبوطی کے ساتھ کیس لڑنے، یونیفارم سول کوڈ کی دوسرے طبقات اور مذاہب کے ساتھ مل کر مخالفت کرنے پر اہم تبادلہ خیال ہوا۔ یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے تک حجاب کی اجازت دی جائے۔ یہ بات بھی میٹنگ میں کہی گئی کہ بھئی سپریم کورٹ میں جب تک فیصلہ نہ آئے تب تک تو حجاب کی اجازت دی جائے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرناٹک میں نیچ ناٹک شروع ہے اور ہر طرح سے حجاب کو لے کر وواد کھڑا کر دیا گیا ہے۔ تو عدالت کے ذریعے مذہبی کتابوں کی تشریح عدالت کر رہی ہے، مذہبی کتاب کی، قرآن کی ڈیٹیل عدالت بتا رہی ہے، تو اس کو لے کر باقاعدہ گزشتہ کل آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی میٹنگ میں اظہار تشویش کا اظہار بھی کیا گیا۔ اور کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو لے کر باقاعدہ بورڈ نے گزشتہ کل میٹنگ میں کہا کہ عدالت کا، کورٹ کا یہ فیصلہ دستور کی دفعہ، سنویدھان کی دفعہ 14، 15، 19، 21 اور 26 کو نظر انداز کر کے کیا گیا ہے، جو دستور کے بھی خلاف ہے۔
नाज़रीन, तीसरी बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने रियासत बिहार से हमारे रिपोर्टर ज़ीशान इलाही ने भेजी है कि एक नौजवान ने नीतीश कुमार को थप्पड़ मारा। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार पर राजधानी पटना के बख्तियारपुर में हमला हुआ। सीएम नीतीश कुमार अस्पताल गए, वो वहाँ एक मुजस्समे पर फूल चढ़ा रहे थे, उसी वक्त एक लड़का आया और ऊपर चढ़ गया। गार्ड को पकड़ते हुए लड़के ने वजीर आला नीतीश कुमार के गाल पर थप्पड़ मारने की कोशिश की, मगर कहा यह जा रहा है कि थप्पड़ उनके बाजू पर लगा। पुलिस ने फौरी तौर पर नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। नौजवान को बख्तियारपुर थाने ले जाया गया है। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो हसीने आलम मुंतखब हुई, जी हाँ, भारत की बेटी दोशीदा हरनाज सिंधु ने बड़ा बयान दिया हिजाब के हक़ में, हिजाब के पर्दे के समर्थन में, मुस्लिम बेटियों के समर्थन में। उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि लड़कियों के पर न काटें। मिस यूनिवर्स ने हिजाब के हक़ में बयान दिया और उन्होंने हिजाब को लड़कियों के पर करार देते हुए लोगों से अपील की है कि हिजाब तो लड़कियों के पर है, उन्हें उड़ने दीजिए ना। अगर वो अपनी इज्जत की हिफाजत के साथ उड़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है तो पढ़ने दीजिए। कहीं आपका ये प्लान तो नहीं है कि इन बेटियों को जाहिल रखा जाए। तो उन्होंने कहा कि लोगों से अपील की कि वो लड़कियों के पर न काटें। मुसलमान ख़वातीन को हिजाब करने पर जहाँ निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आती रहती है, वहीं इन्हीं तालीमी इदारों और दूसरे काम की जगहों पर हिरासा किए जाने की रिपोर्ट्स भी आती रहती है। लेकिन इस मौके पर मिस यूनिवर्स हरनाज सिद्धू ने हिजाब के हक़ और हिजाब के समर्थन में बयान दिया। आइए नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। जी हाँ, उर्दू जर्नलिज्म, उर्दू सहाफ़त, उर्दू पत्रकारिता के 200 साल मुकम्मल हो गए। 200 साल जश्न बताया जा रहा है कि 30 मार्च को, यानी 2 दिन बाद दिल्ली में होगा। साबिक़ नायब सदर जमहूरिया, वाइस प्रेसिडेंट एक्स मोहम्मद हामिद अंसारी और साबिक़ मरकज़ी वज़ीर ग़ुलाम नबी आज़ाद इस जश्न में शिरकत करेंगे। बताया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में 30 मार्च को उर्दू सहाफ़त का 200 साला जश्न मरकज़ी तकरीब की शक्ल में मनाया जाएगा और जिसमें मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर मोहम्मद हामिद अंसारी और ग़ुलाम नबी आज़ाद शरीक होंगे। नई दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में मुनक़िद होने वाले इस अहम प्रोग्राम में और भी कई मेहमानान ने शिरकत की मंजूरी दे दी है। इन 2 मेहमानों के अलावा बाकायदा हिंद समाचार जालंधर के एडिटर विजय कुमार चोपड़ा, ऐसे ही पद्मश्री प्रोफेसर अख्तरुल वासे, ऑल इंडिया उर्दू एडिटर्स कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट नदीम उल हक, सीनियर सहाफ़ी और शायर हसन कमाल, प्रोफेसर शाफी क़दवाई और डॉक्टर सैयद फारूक के नाम भी काबिले ज़िक्र हैं। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता कल बयान देते हुए ये कहा है कि बेटियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। अहले वतन भारत के लोग से अपील की नरेंद्र जी मोदी ने कि बेटियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। आपको याद होगा कि यही नरेंद्र मोदी है और उनकी पार्टी है जिन्होंने 2013 में बेटी बचाओ का नारा लगाया था। मगर क्या करें, बोलूँ तो थोड़ा सा बुरा लगता है। मोदी जी, आपके नारे बड़े सुनहरे होते हैं, जैसे आपके ख्वाब सुनहरे होते हैं, जैसे 15 लाख का आपका ख्वाब पूरे मुल्क के लिए बड़ा सुनहरा रहा, किसी के अकाउंट में 15 रुपये भी नहीं आए। ऐसे ही आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया था। लेकिन मोदी जी, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि 7 सालों में जितना रेप और जितना बेटियों का इस्तेसाल और दुष्कर्म, बेटियों पर जुल्म हुआ है, मोदी जी मान लो सच्ची बात, आपके जो अंधभक्त गोबर भक्त, आपके जो दलाल चैनल है ना मोदी जी, वो झूठ परोस रहे हैं क्योंकि उनको आपको खुश करना मकसद है। लेकिन मोदी जी, आप अगर चाहते हैं, आपका मन सच्चा है, आपका तन, आपका मन, आपकी नीयत अगर सच्ची है, तो आपके ये अल्फाज बेटियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। बिल्कुल, हम अपनी बेटियों की तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं, मगर क्या करें, जहां आपकी हुकूमतें हैं वहां पर हमारी बेटियों को इज्जत के साथ पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हमारी बेटियां सर नहीं ढक सकती, जी हाँ, वो हिजाब नहीं कर सकती। 70 सालों में कभी इतनी घटिया हरकत मोदी जी नहीं हुई थी। अगर आप सच्चे हैं अपनी बात में, जैसा कि आपका ये बयान मैं सुना रहा हूं कि आप लोगों से कह रहे हैं कि बेटियों की तालीम पर तवज्जो दें, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप बेटियों के ड्रेस पर तवज्जो न दें।
बेटियां जिस तरीके से, अगर कुछ बेटियां अपने आप को फुल छुपाने में अपनी इज्जत की हिफाजत समझती है, तो मोदी जी आप उनकी इज्जत की हिफाजत होने दें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। उन बेटियों को ऐसा लगता है कि हमें हिजाब में महफूज है, तो आप उनको हिजाब पहनने दें। ये आप अगर सच्चे हैं आपकी बात में, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और पूरा मुल्क आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि जहाँ जहाँ आपकी हुकूमत है वहाँ पर नीच और घटिया हरकतें आपके लोग कर रहे हैं, मोदी जी आप उनको रोको और बेटियों को पढ़ने दो। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। आप जानते हैं कि इस वक्त बीजेपी सिर्फ और सिर्फ गैर ज़रूरी मुद्दे उछाल रही है, लेकिन जो अच्छे पढ़े लिखे हिंदू भाई भी है वो बीजेपी पर थूकते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वक्त बड़े हिंदुस्तान के साबिक सॉलिसिटर जनरल रहे हैं और नामवर वकील हरीश साल्वे, इन्होंने इजहार करते हुए ये बात कही है कि कॉमन सिविल कोड, यकसा सिविल कोड से ज़्यादा अहम चीज़ इंसाफ वक्त पर मिल जाए, ये असल है। आप इंसाफ वक्त पर दे नहीं पा रहे हैं, बरसों आपके यहाँ अदालतों में केस चल रहे हैं और बरसों के बाद में बेकसूर भी लोग छूट रहे हैं, लेकिन उनके 10-15 साल जेल के सलाखों में चले जाते हैं, तो फिर उनको इंसाफ कौन देगा। तो खैर, हिंदुस्तान के साबिक सॉलिसिटर जनरल और नामवर वकील हरीश साल्वे ने बात रखते हुए कहा है कि कॉमन सिविल कोड, अभी कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है, जी हाँ, यकसा सिविल कोड की बात हो रही है, इससे कोई मुल्क की भलाई विकास का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसे ही मुद्दे उछाले जा रहे हैं, एक एक करके लाए जा रहे हैं, निकाले जा रहे हैं ताकि बस नफरतें फैले। तो अब सॉलिसिटर जनरल वकील हरीश साल्वे ने कहा है कि कॉमन सिविल कोड से ज़्यादा अहम इंसाफ का वक्त पर मिल जाना है। इंसाफ वक्त पर मिल जाए, आप इसकी कोशिश कीजिए। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो मिनिस्ट्री है, काबीना बनी है, उसमें एक चेहरा है, जो नया चेहरा है, मुस्लिम वजीर है दानिश अंसारी। तो दानिश अंसारी ने दावा किया कि मुस्लिम समाज में मोदी जी और योगी जी की मोहब्बत मुसलसल बढ़ रही है। ये दावा किसका है? योगी जी के अकेले इकलौते लाडले मुस्लिम मंत्री दानिश अंसारी का। तब लोग कमेंट करना शुरू कर रहे हैं कि इसके अलावा वो बयान दे ही नहीं सकते, क्योंकि बेचारे थोड़ी सी तो वफादारी उनको दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि अकेले हैं। अच्छा, योगी जी को भी और मोदी जी को भी एक तो मुस्लिम रखना ज़रूरी है दिखाने के लिए। तो दानिश अंसारी को लोग लिख रहे हैं कि मियाँ जी आप में कोई कमाल नहीं है, एक चेहरा तो मुसलमान का चाहिए। जी हाँ, दिखाने के लिए तो आपको रख लिया गया है, लेकिन वो भी क्या करेंगे दानिश अंसारी, उनको भी थोड़ी सी वफादारी दिखाना ज़रूरी है। तो लोग कह रहे हैं कि दानिश अंसारी ने यह दावा किया है कि मुस्लिम समाज में मोदी और योगी की मोहब्बत मुसलसल बढ़ रही है। अब वो मुसलसल कैसे बढ़ रही है, ये सिर्फ दानिश अंसारी ही जानते हैं, बाकी कोई नहीं जान सकता। आइए नाज़रीन, बड़ी खबर आ रही इस वक्त रियासत गुजरात के अहमदाबाद से। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि AMP यानी एसोसिएशन ऑफ मुस्लिम प्रोफेशनल्स, AMP ने हफ्ता 26 फरवरी 2022 को अहमदाबाद में इस्सा फाउंडेशन और इकरा फाउंडेशन के इश्तिराक से एक मेगा जॉब फेयर का इनेकाद किया, जो कि एक बहुत ही नुमाया कामयाबी रही। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि इस्सा फाउंडेशन और इकरा फाउंडेशन की जानिब से अहमदाबाद में मुनक्किदा मेगा जॉब फेयर में 2200 प्लस उम्मीदवारों ने शिरकत की। जी हाँ, ये बहुत कामयाब रहा और ये खबर मैं इसलिए भी दिखा रहा हूँ क्योंकि इस्सा फाउंडेशन मैं लगातार देखता रहता हूँ और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस्सा फाउंडेशन हज़रत मौलाना हबीब साहब अहमदाबाद के थ्रू हमारे शहर में भी अल्हम्दुलिल्लाह लाखों रुपये का गरीबों के लिए राशन किट्स आए थे आज से 2 साल पहले रमज़ान में, जिसकी वजह से लोगों ने काफ़ी दुआएं दी थी। तो इस्सा फाउंडेशन एक बहुत बड़ी फाउंडेशन है, हज़ारों गरीब और यतीम बच्चियों का इन्होंने निकाह करवा दिया है, हज़ारों घरों में, लाखों, अगर कहूँ तो गलत ना होगा कि लाखों घरों में इन्होंने न जाने आज तक कितना राशन पहुँचाया है। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम लोगों को इसका बेहतर बदला नसीब फरमाएँ। और अभी ये खबर मेरे सामने आई कि अहमदाबाद में इस्सा फाउंडेशन, इकरा फाउंडेशन, AMP, इन तमाम लोगों ने मेगा जॉब फेयर रखा था 26 फरवरी को, जिसमें तकरीबन 2200 प्लस उम्मीदवारों ने शिरकत की। बस मैं इतना ही कहूँगा कि अल्लाह ताला मौलाना हबीब अहमद साहब और इस्सा फाउंडेशन के तमाम जिम्मेदारान और पब्लिक ट्रस्ट, एजुकेशन इंडिया पब्लिक ट्रस्ट अहमदाबाद और इस्सा फाउंडेशन के जितने भी जिम्मेदारान हैं, AMP के और इकरा फाउंडेशन के, अल्लाह ताला इनको इसका बेहतर बदला दुनिया आखिरत दोनों जहां में नसीब
फरमाएं आमीन। आइए नाज़रीन, आखिरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता कल मुंबई में इमरान प्रतापगढ़ी जो ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष है, नेशनल प्रेसिडेंट है, गुज़िश्ता कल वो मुंबई में आए थे। ज़बरदस्त अंदाज में उनका इस्तकबाल, सत्कार और सम्मान भी किया गया और इस मौके पर बाकायदा कई जगहों पर प्रोग्राम्स भी हुए। इस वक्त इमरान प्रतापगढ़ी ने, जो मशहूर शायर भी है, उन्होंने अपनी बात कही कि इस वक्त मुल्क तबाही के दहाने पर है और मुल्क को बचाने की जंग, मुल्क को बचाने की लड़ाई, जैसे पहले कांग्रेस ने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेज़ों के जुल्म से बचाया था, ऐसे ही इस वक्त मुल्क को बचाने की जंग फिर जरूरी है, क्योंकि मुल्क इस वक्त नफरतों की आग में झोंका जा चुका है। और मुल्क बचाने की जंग सिर्फ, इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि मुल्क बचाने की जंग सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही लड़ सकती है। इस मौके पर रियासत महाराष्ट्र के कांग्रेस के अध्यक्ष मोहतरम नाना पटोले ने कहा कि बीजेपी मज़ाहिब को तकसीम करके हुकूमत करने की सियासत खेल रही है, यानी डिवाइड एंड रोल, हिंदू मुसलमानों को लड़वाओ और फिर हुकूमत करो। तो जो वो अंग्रेज़ों की नीच और घटिया पॉलिसी थी वही बीजेपी इख्तियार कर रही है और अब मुल्क को बचाने की ज़रूरत है। हर सच्चे भारतीय को आगे आना होगा और नफ़रतों से इस प्यारे मुल्क को बचाना होगा, क्योंकि बीजेपी की नफ़रत फैलाने वाली सियासत मुल्क के लिए ख़तरनाक है। जिस तरीके से बम यूक्रेन पर गिर रहे हैं, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक बम बीजेपी नफरतों के बम छोड़ रही है, जिससे मुल्क तकसीम हो रहा है। क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ, जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है। आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है। हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें।